ہمارے یہاں مہمان خصوصی مسرت احمد میر صاحب کے آن بہاف اس کے یہاں دوسرے کیٹیگری کے آفیسر موجود ہے. کلیکٹر ٹرافی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بسط صدر ہلال احمد وانی والد عبداللہ وانی ساکنہ نوگاں بنپورہ دکاندار جلسے میں آج اس ورکنگ باڈی جلسے میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ میں ٹریڈرز ایسوسی ایشن نوگاں کی بقا اور آئین کی ہر طرح پاسداری کرتا رہوں گا. میں ٹریڈرز ایسوسی نوگاں سے وابستہ ہر تاجر بلا کسی رنگ و نسل امیر و غریب کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھ کر اس کے ازالے کے لیے سر توڑ کوشش کروں گا. میں ٹریڈرز ایسوسی نوگاں کے سود و بہود کے لیے ہمیشہ دل و جان اور ایمانداری سے کام کرتا رہوں گا. میں اس منصب کی ہر وقت عزت و توقیر کرتا رہوں گا انشاءاللہ. Congratulations to Mr. Hilal Sahab. Now, I would like to call Mr. Parvez Ahmed Bhatt Sahab. Please come forward and اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں باسطی جنرل سیکرٹری جنرل سیکرٹری پرویز احمد بٹ پرویز احمد بٹ والد عبدالرشید بٹ والد عبدالرشید بٹ ساکنہ نوگاں ساکنہ نوگاں دکاندار ٹریڈرز ایسوسی نوگاں دکاندار ٹریڈرز ایسوسی نوگاں آج اس ورکنگ باڈی جلسے میں ورکنگ باڈی جلسے میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ میں ٹریڈرز ایسوسی نوگاں کی بقا اور آئین کی ہر طرح پاسداری کرتا رہوں گا. میں ٹریڈرز ایسوسی نوگاں سے وابستہ ہر تاجر بلا کسی امتیاز رنگ و نسل اور امیر و غریب کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھ کر اس کے ازالے کے لیے سر توڑ کوشش کروں گا. میں ٹریڈرز ایسوسی ایشن نوگاں کے سود و بہبود کے لیے ہمیشہ دل و جان اور ایمانداری سے کام کرتا رہوں گا. میں اس منصب کی ہر وقت عزت و توقیر کرتا رہوں گا انشاءاللہ. میں ایک بات کے ڈسکس ہوئے کہ ہر ٹیم جو ٹریڈر کا ایک اپنا ایسوسیشن کا جو پورٹل چلتا ہے اس پہ تو ہر 3 مہینے کے بعد یہ ٹریڈر ٹرافی محدین صاحب اس پرووائڈنگ ٹرافی کی پوسٹ پر اس مجلس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اب میں دعوت دیتا ہوں سابقہ صدر الیکشن کمشنر ٹریڈرز ایسوسی ایشن نوگاں صوفی محدین صاحب کو ایسوسی ایشن کے وجود اور انتخابات پر مختصراً روشنی ڈالیں. میں اس ٹریڈرز ایسوسی ایشن کی مختصر وضاحت کروں گا. اس ٹریڈرز ایسوسی ایشن نوگاں کا وجود 1998 میں عمل میں لایا گیا. تب یہ نٹی پورہ نوگاں بائی پاس کہلاتا تھا. نٹی پورہ چوک سے وانبل بائی پاس تک کوئی ایسوسی ایشن نہیں تھی. میں نے اور میرے ساتھ میرے مرحوم دوست
अब्दुल मजीद भट्ट साहब आगे आए। अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत अता करे, मगफिरत अता करे, हमारे वालिदीन को मगफिरत अता करे। तो हमने एक अलम उठाई, साथ में हम नायकबाग, बरसा नगर, वानेबल, बहुत से इलाकों को जोड़ दिया, जिनमें 4 सदूर साहिबान इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला जिनमें शेख गुलाम रसूल नायकबाग, अली मोहम्मद वानी साहब बाईपास, अब्दुर्रहमान रेडो साहब, ये सब हमसे जुदा हो गए। अल्लाह ताला इनको मगफिरत करे। तो इसका मतलब है कि अब हमारी बारी है। तो हमने दाग बे डाली, उसके बाद बरसा नगर ने अपना जो उनको निकालना था निकाल गया, वो जुदा हो गए। फिर इतना काम बढ़ गया कि बाईपास उठ गया, तो हमको मजबूरन में वानेबल, बाईपास, नटीपोरा, बरसा नगर को अलग छोड़ना पड़ा। काम बहुत था, क्योंकि इसमें कोई तनख्वाह नहीं है, ये बगैर सैलरी काम करना पड़ता और अपना काम काज भी चलाना पड़ता। वक्त बढ़ता गया, हमने बहुत सारी कोशिश की, मतलब यहाँ बहुत सारे लोग ताका रखें कि नए सदूर साहिबान, जनरल सेक्रेटरी साहब के पास कि ये काम करेगा, कोई काम नहीं करेगा, कोशिश करते हैं। हमने कोशिश की, नौगांव नटीपोरा रोड पर मैगडम बिछाया, हमने शामियाना सड़क के बीचों बीच नस्ब किया, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आई, तहसीलदार आया, एडीसी आया, हम नहीं उठे। SHO नौगांव मोहतरम मंजूर साहब आए, उसने मुझे बाहर निकाला कि आपको मानना पड़ेगा 24 घंटों के अंदर मशीन आएगी, लेकिन अल्लाह ने इज्जत रखी, 12 घंटों में ही मशीन आ गई। बहुत सारे काम किए हमने और करते रहे, बरादरी में करते रहे, पैसा जोड़ते रहे। फिर सैलाब आया, सैलाब में हमने जितने भी लोग आए वेरिफिकेशन होती गई, कोई एक नहीं छोड़ा जिसने मुआवजा नहीं लिया। जो हुआ हम पर इल्जाम लगते गए, पैसा खाया। आज भी कोई खड़ा हो जाए कि इसने मेरा 10,000 रुपया खाया है, मुझे फांसी दे दो चौक में, बाकी इल्जाम आते रहेंगे। मैं खलाल साहब से गुजारिश करूंगा कि सिर्फ बददुआ से बचें। जितना ये आप लोग समझते हैं चलाना उतना आसान नहीं है, ये कांटों का ताज है, मिलजुल के काम करो। बाकी मेरी मैसेज है, जो उम्मीदवार मैदान में आए, जावेद साहब, हनीफ साहब और ये 2 और मेरी इलेक्शन बॉडी, जिसने इस इलेक्शन को कामयाब किया, ये तवारी की एक इलेक्शन था, ये इसमें बिल्कुल साफ शफाफ डालने की कोई गुंजाइश मैंने रखी नहीं थी। और तमाम ताजरान ने आउट ऑफ 416 411 वोट पाल गए, जो बजाजी खुद एक मतलब एतमाद है कि फेयर इलेक्शन है, हमने इलेक्शन में करने में कामयाब हो गए। मैं एक बार फिर तमाम ताजर बरादरी के जुनून ने इस इलेक्शन को कामयाब किया, और जो जिन उम्मीदवारों ने इसमें हिस्सा लिया और जो कामयाब हुए और जो ना हुए, उनका शुक्रिया एक बार फिर अदा करता हूँ। ये हम सब की कामयाबी है, ये ईडी की कामयाबी नहीं है, पूरी ताजर बरादरी की कामयाबी है। तजारत करन वोल मुतलिक फरमो रसूल अरबियन सोसलम यासा आयसी शहीदन नेक तरीकस मज तजारत कर, ईमानदारी सान, अजीम पेश इस्लाम। अक्सर पैगम्बरी इज़ाम या साहबे किबार या बड़ बड़ इन दुनिया में आमत बड़ हस्ती, तम सारी करान तजारत, तम तो पन नाव लिखनावान रजिस्टर नौकरी, तम नौकरी कर। क्या तजारत पेश इंसान से आसान आज़ाद, ये मुसलमान अल्लाह ताला जान वहदो ला शरीक, पत कर गलती की, पत रोज हर कुन पन्निस गारस अंदर ईमानस पे तो वन इत्तकुल्लाह। यमुक इब्तिदा गो आज ब्रोह वारिया कल 2004 अंदर यम सात मोन बरादरी अकबर वो सदर यम फेडरेशन अब्दुल मजीद, तम दुनिया में द्राम परवरदिगार कर मकबूर मरहूम सूफी मजीद साहब तम जनरल सेक्रेटरी अमिक। तो इंशाल्लाह पत चेंज गसान आहिस्ता आहिस्ता, आज गई वारिया मुनज़म, पवन अरशद परवरदिगारा अत साबित कदमी रोजन अंदर बेस तौफीक पानी इतफाक। नावगाम बाशिंदे सारी आज ताजर समखेमित हेरमे महलिक बनमे महलिक सोचान कर इतिहाद तो इतफाक पान वही, अस गोस हेरपुर गुन क्या, अस गोस बनपुर गुन क्या,
वुनकन सारी ये नौजवान योत मोन वन मुदा यह कर रलित मिलित कम अगर कह कुन सात कह मुश्किलात यह जन वुनकन नौ मुंतखब यमिस जन कामयाबी मज आव लबन हिलाल अहमद वानी साहब ब्या जनरल सेक्रेटरी परवेज अहमद साहब यम सत अगर कुन सात कुन किस्म कुन हाजत यम गसन तम सात सती चाहे सो अपोजिट चाहे सो इज अत ग्रुपस गो यह सोचन यह वफर यह अपोजिट बल्कि गो यह सोचन तम सात यह नौगाम ताजर अत मज मुनजम रोजन अत मज सत पकन हर कह बेहतरीन अल्फाज बशीर अहमद की हमें बिल्कुल ये अपने दिमाग से निकालना चाहिए कि हैपुर तो बनपुर ये बिल्कुल हम भूल जाना चाहिए। और मैं नौमुंतखबा प्रेसिडेंट साहब और जनरल सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इस ट्रेड को एक दूसरे को साथ लेके मिला के चले, जो भी काम होगा वो मिलजुल के करना होगा। और एक और बात हमें दिमाग से निकालनी चाहिए कि यहाँ किसी की हार या किसी की जीत हुई है, बल्कि ये तो होता रहता है, एक को आगे आना है, एक को काम करना है। मैं हिलाल साहब से परवेज साहब से गुजारिश करता हूँ कि आइंदा जो भी प्रोग्राम होंगे तो वो इंशाअल्लाह रहमान हम सब मिलजुल के काम करेंगे अपनी भला के लिए, अपने गाँव के भला के लिए। और हमारा ये जो गाँव है ये न हैपुर है न बनपुर, ये खाली नौगांव है। ट्रेडर्स एसोसिएशन नौगाम शान तो इंशाल्लाह ये शान गई हमेशा रोजन जिंदा तो ट्रेडर्स एसोसिएशन रोज हमेशा खतर जिंदा, अलबत्ता चेहरे चेंज हो जाते हैं इंशाअल्लाह रहमान। अच्छी उम्मीद कि हिलाल साहब पकनाया तो ब्रोट कुन। अस्सलामु अलैकुम। बह तमाम दुकानदार बरदरी हूँ शुक्रगुजार तमो दित मे पूर ताउन ये इलेक्शनस मज तमो कोर मे पे भरोसा इंशाअल्लाह रहमान अस गए दुकानदारान ताबियादार यस तो दुकानदारस प्रॉब्लम तन गन मोन जू बस तम दिन खतर तैयार 24 घंटे चाहे 2 बजे रात में फोन कर अम मजीद महलस मज कुछ चीज कमी तथ शान बज सान खड़ा सारे शुक्रगुजार सोफी मोदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि आज इलेक्शन 2017-2018 यम नतीज द्राय हिलाल साहब तो परवेज साहब आई उम्मीदवार कामयाब करा दिया इंशाल्लाह। जो हमने वादे किए हैं इंशाल्लाह हम वो मिलजुल के पूरे करेंगे। और हम शुक्रगुजार हैं सबका जिन्होंने हमारे साथ पूरा ताउन किया, जिन्होंने हमारे साथ दिया। फर्स्ट ऑल मैं इलेक्शन कमिश्नर सोफी मोहिद्दीन का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे चुना था, उससे बहुत कुछ सीखने को हमें मिला है। इंशाल्लाह जो हमने वादे किए हैं मिलजुल कर हम करेंगे वो बराबर इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज एक पोलिंग एजेंट के हैसियत से काम किया। लगभग मैंने ये इलेक्शन 1998 से देखे हैं, लेकिन जितना साफ शफाफ और गैर जानबदाराना ये जो आज का इलेक्शन था, आज तक मैंने किसी भी सियासत जमात में ऐसा इलेक्शन नहीं देखा है। आज तक ट्रेड के बहुत इलेक्शन हुए हैं, लेकिन आज का जो इलेक्शन था ये एक यूनिक इलेक्शन था। हम सुबह 7:30 बजे से यहाँ खड़ा है, किसी किस्म की कोई इसमें मिलावट नहीं थी। मेरा असल में मुद्दा मकसद था है साफ शफाफ इलेक्शन करना, सिर्फ नौगाम के लिए नहीं, श्रीनगर के लिए नहीं, पूरी वादी को एक नमूना दिखाना चाहता हूँ कि इलेक्शन कैसे करते हैं। इसीलिए साफ शफाफ तरीके से हमने मीडिया कवरेज की, पिछले 6 महीने से हमने ये किया। लिहाजा मैं तमाम जो नाम निहाद बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं उनको हमारी नौगाम की तरफ से मैसेज जानी चाहिए कि आप सामने मैदान में आ जाओ, जीत के दिखाओ। लिहाजा गुजारिश होगी कि मिलजुल के काम करें, अगर बरादरी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मिलजुल के काम करें। पोलिंग अमला, एजेंट हजरात, ताजर बरादरी जिन्होंने हमारे साथ जम्मू कश्मीर पुलिस स्टेशन एसोसिएशन नौगाम साहब ने हमारे साथ शाना बशाना काम किया, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।